ठीक है, चलिए काटिए। So design itself is in front of spill-proof Sangdi, sir. So it will not toggle whenever one is. So you can just. ये वेपन भी होता है। But in this Gandhi we have another pot which works on the principle of gyroscopic movement. So usually what happens when Gandhi, when it falls, the ashes splits out. So it can cause burns and even burns of carpets. So for that reason we have the innovator Asim Sikandar Mili. He has redeveloped the traditional Gandhi, named Gandhi, which works on the principle of gyroscopic effect. So the inner pot rotates anti-clockwise, so the ashes will not fall into the water. So this is the basic. Yes, it will always be horizontal. रोबो स्काई रोबो है, तो ये क्या करेगा, इस पे डार्ट गन हमने भी डिजाइन की हुई है। सो डार्ट गन में ट्रैंकुलाइजर होगा, सो इट विल monitor the areas which generally face the man-animal conflict, and then when it finds a bear coming into the inhabitants, it will just fire. और ये सारा remotely आपके लिए लैपटॉप पर कंट्रोल होगा. So dart will fire at tranquilizers, one application. Then disaster management की इसकी application है, आप सर बताइए. तरह से पोर्ट टॉप पर नहीं चढ़ सकते, उसका लिमिटेड हाइट होता है। जो ये है हम किसी भी हाइट पर चढ़ सकते हैं और अपने हाथ भी मतलब तो आगे चल के इसके साथ एक सेंसर लगा दिया जाए ताकि वो जो हाथ चढ़ रहा है उसका लोकेशन यहाँ पे कर लोगों को पता चले। हमेशा ये सोचो इसके आगे क्या हो सकता है अगर स्टार्टअप की दुनिया में चल रहा है। नहीं बिल्कुल सही तो अगर वो गोल चल रहा है कहीं रिमोट है, गुजरात बेस्ड कंपनी which is Innovatex Institute, a pole climber and getting the orders from the highway department. Otherwise pole पे चढ़ने के लिए it was a big all the communities, sheep and goat area. टेलीमेडिसिन में भी Yes, sir. ये बाहर तक चला जाएगा, खराब नहीं होगा। सर मेरा टारगेट है 6 महीने में इंटरनेशनल जाना सर, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए सर। पंजाब सिंध गुजरात मराठा तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जरूरी है कि ऐवान सदारत में मौजूद मेहमानान हज़रात इनको जवाब बनाया। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मयस्सर, इन नेमतों का मुझको। As we move forward, we see that exhibitions which has showcased 50 startups, NIF, National Innovation Foundation, which is providing a lot of hand-holding support to these innovators and startups. And welcome one and all. Opportunities not just for themselves but for people across the country. With mobilization of financial institutions and training institutes by Government of India, it has been ensured that no innovative idea is left unexecuted. To direct and support the innovation and creativity of youth, both men and women are provided ample opportunities. Also with us, Anita Gupta ji, advisor and head from the National Innovation Council Foundation, which is doing this important event. Dr. S. Reddy, who is the director of a CSIR. With me, the very senior vice chancellors of various universities of Kashmir, including the University of Kashmir, Central University Farooq Saab from Central University, Director NIT Sarangal Saab, the vice chancellor Cluster University Mr. Qayyum Saab, the director Sukast Nazir Ganai Saab, vice chancellor from the Baba Ghulam Shah Badshah University, director SKIMS,
With us available Division Commissioner Kashmir Pandurang Saab, my colleague secretaries, administrative secretaries and various senior officers who have come from DST and also from the National Innovation Council and from DBT. And most importantly, the guests of today, the innovators and students from more than Advisor and Head Innovations and Entrepreneurship Department of Science and Technology, Government of India, various departments of Union Territory of Jammu and Kashmir, the innovators come entrepreneurs participating in this startup expo. These words I request, one in Urdu and the other in Kashmiri. ये वो दिन पहुँचे हैं जहाँ हमने कुछ किताबें भी, जिसे कहते हैं मौलिक किताबें, ओरिजिनल राइटिंग की किताबों का तैयार किया है और ये किताबें अब सबके लिए हाजिर हैं। आप लोग सब पढ़ें और कोशिश करें कि अपनी ज़बान के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए काम करें, आगे बढ़ें। And all the dignitaries of the dais, I could see many VCs, directors in technology. As you all know, that we have markings, providing hand-holding support, lot of funding support to fledgling and budding entrepreneurs across the country. Socio-economic development of the country. As we see, as also shared. और ये कि ये स्टार्टअप होता क्या है? आपने इतनी लंबी चौड़ी तकरीरें सुनी, स्टार्टअप है क्या? ये सारा फलसफा क्या है? So what is startup and then why talk about it in Kashmir? आप मीडिया वालों से पूछिए कितनी दिलचस्पी है इनको। ये तो कहते इतने सारे और मौजूद लेकर के आए थे, ये क्या छेड़ दिया आपने? अभी बाहर मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि जो आप चाहते हैं बोलना मैंने बोलना नहीं और जो आपको चाहिए वो मिलेगा नहीं, क्योंकि आज का मौजू कुछ ऐसा। So that is why I am trying to start from the basics, because unfortunately this region does not have had the kind of exposure which some of the other regions of the country had, at least in this area. So why startup and why startup in Kashmir? आपको याद होगा वज़ीर आज़म बनने के बाद जो शुरुआती दौर में जो मोदी जी ने एक बयान दिया था, उसमें यह था कि मुल्क के ऐसे हिस्से, ऐसे खित्ते जो उस कदर तरक्की ना कर पाए जिस तरह से कुछ और रियासतें कर पाई, उनको उस मकाम तक ला करके, ताकि हिंदुस्तान की हर रियासत, हर खित्ता एक तरह से तरक्की कर सके और सारे के सारे हिंदुस्तान की तरक्की तभी मुमकिन है। The exact words he used was that if one arm of Mother India remains feeble, however stronger is the other arm, the total growth of Mother India will not be possible. तो इसलिए एक तो ये वजह और दूसरी, और उसके लिए जब उन्होंने ये बात कही तो जाहिर उनके जहन में था जम्मू कश्मीर का खित्ता, नॉर्थ ईस्ट, आइलैंड टेरिटरीज, जो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की प्रायोरिटीज से छूट गई थी, जिनको शायद उस तरह की तवज्जो नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। वजूहात कोई भी रही है, उसमें नहीं जा रहा, लेकिन मोदी जी ने एक नई तहजीब इस मुल्क में पैदा करने का एक कोशिश की है कि जिस चीज़ की जहाँ कोताही रह गई उसकी भरपाई की जाए, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको पहुँचाया जाए। ये नहीं पूछना कि मज़हब क्या है, ज़ात क्या है, ये भी नहीं पूछना वोट पिछली बार हमको दिया था किसी और को दिया, ये भी नहीं कहना कि आज स्टार्टअप किया तो इस बार अगली बार हमें देना। वो छोड़ दें अवाम पर, उनके विवेक पर, उनकी जहनीत पर। लेकिन अगर हमने हिंदुस्तान की मुकम्मल तरक्की का कोई मंसूबा बनाना है तो मुमकिन नहीं कि कोई हिस्सा पीछे छूट जाए, और दैट इज़ वाई स्टार्टअप इन कश्मीर, क्योंकि एक ऐसी मुहिम जिसने सारे हिंदुस्तान में जोर पकड़ा लेकिन किसी न किसी वजह से यहाँ पर वो नहीं पहुँच पाई। उसकी क्या वजूहत है उसकी भी कुछ एक लम्हों के बाद बात करेंगे। और साथ ही साथ मोदी जी ने बार बार आपकी जितनी भी तकरीरें सुनी, बात की है टेक्नोलॉजी की, बात की है साइंस की। अब हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म को इतनी फुर्सत नहीं कि वो एक ही मसलों को लेकर बात करते रहे। वो इसलिए कर रहे हैं कि हम समझें कि जो हम अगले 25 वर्ष कहते हैं कि अमृतकाल है, हम हिंदुस्तान दुनिया की पहली कतार में आकर के खड़ा हो जाएगा, तो कैसे खड़ा होगा? The entire progress and growth in the years to come is going to be technology driven, and the sooner we understand this,
the better for all of us. But the paradox is that we had the potential, we had the capacity, but we didn't have the direction. हमें काबिलियत की कमी नहीं थी, ज़हनियत की कमी नहीं थी, मेहनत करने का मादा भी था। अनेकों मिसालें हैं हमारे पास, अगर आप तारीख के पन्ने खोलिए, ज़रा आप अंदाज कीजिए, जब विक्रम साराभाई ने स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम शुरू किया हिंदुस्तान में 1950 की दहाई में, तो रूस और अमेरिका तो चांद की धरती पर कदम रखने के लिए तैयार थे, पर आप क्या कर रहे थे? आप बच्चों के साथ बैठ के गा रहे थे चंदा बाबा दूर के बड़े बगाए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे नौजवान थे, आंखों में सितारे, आंखों में ख्वाब, जो समझते थे कि हम उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। And the manner in which we have taken over the quantum jump, we have overtaken those countries of the world which started their space journey much before us, many decades before us, are now picking up cues from us. स्टार्टअप एक्सपो मुनक्कद किया गया 3 दिन का, क्योंकि जैसे आपको याद होगा कि सन 2015 में मोदी जी ने लाल किले से यौम आज़ादी के मौके पर कहा था स्टार्टअप इंडिया, और सारे मुल्क में एक मुहिम शुरू हो गई। ना मालूम क्यों इस तरफ वो उस तरह से उतनी रफ्तार नहीं पकड़ पाई वो मुहिम। हालांकि हमारे पास ऐसे सरमाए जो शायद दूसरे कुछ एक रियासतों में या खित्तों में मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, और शायद बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी कि पर्पल रेवोल्यूशन जिसे कहा जाता है हिंदुस्तान भर में जिसका जिक्र हो रहा है, उसकी पैदाइश भी जम्मू कश्मीर से हुई। गुलमर्ग में पहले लेवेंडर की कल्टीवेशन का काम शुरू किया गया था सबसे पहले हिंदुस्तान में, और उसके बाद फिर भद्रवाह में, और जो स्टार्टअप उससे जुड़ गए वो लाखों में खेल रहे हैं, बल्कि कुछ एक बच्चे अपनी कॉरपोरेट नौकरियां छोड़ करके उससे जुड़ गए। तो इसकी मुराद ये है कि कहीं ना कहीं जानकारी की कमी है और कहीं ना कहीं जहनियत बदलने की ज़रूरत है कि जो सरकारी नौकरी हमारे जहन में धंस कर गई है उससे निकल करके ये बच्चों को एहसास हो कि और भी ऐसे मौक़े हैं मोदी जी ने मुयस्सर किए हुए, जिसके ज़रिए सरकारी नौकरी से कई गुना ज़्यादा आमदन का ज़रिया बन सकता है। और इस वक्त पिछले 7-8 सालों में मोदी जी के ही सदारत में बहुत से ऐसे फैसले लिए गए जिनके चलते हर तरह की इमदाद और हर तरह का ताउन टेक्नोलॉजी के ज़रिए या माली ताउन के ज़रिए सरकार की ओर से मुयस्सर किया जा रहा है। बैम्बू को लेकर के हमने फॉरेस्ट एक्ट को बदल दिया, बैम्बू को उसकी क्लियरेंस से बाहर कर दिया। इतना बड़ा फैसला 100 साल पुराना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था। हमारे यहाँ 2-2, 3-3 इदारे हैं, बायरैक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं, और यहाँ तक ये जो लेवेंडर की कल्टीवेशन हो रही है गुलमर्ग और कुछ एक खित्तों में, इनका हमने टाई अप करवा दिया मार्केट में, महाराष्ट्र गुजरात में, उनके प्रोडक्ट भी वहाँ बिक रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपकी भी थोड़ी सी मदद रहे, आपका ताउन रहे मीडिया का, तो नौजवानों के अंदर ये जानकारी पैदा हो, और आने वाले 25 साल में जो हिंदुस्तान की इकॉनमी है उसमें एक अहम रोल जम्मू कश्मीर और ये पहाड़ी रियासतें निभाने वाली है, क्योंकि पहले 75 साल ज़्यादातर जनूब और मगरिब की रियासतें रहीं, क्योंकि इस तरह के जो पोटेंशियल थे, अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स ऑफ हिमालयाज, अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स ऑफ अरोमाज, अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और ये हिंदुस्तान का सरमाया है एक्सक्लूसिव टू इंडिया। जब इसको अमल में लाया जाएगा तो कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान पहले मकाम पर आकर खड़ा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, महबूबा और उमर मुझे